ایک قدیم گھڑی ساز کی دکان کے اندر ہر طرف گھڑیوں اور پیچیدہ اوزاروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ دکان کا مالک بابا دین محمد ایک بزرگ گھڑی ساز ہے اور اس کا نیا طالب علم علی اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ بابا دین محمد علی، یہ کام بہت نازک ہے، یہاں ایک چھوٹی سی غلطی تمام کوششوں کو برباد کر سکتی ہے۔ علی: ہاں استاد، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ علی گھڑی کے پیچ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کانپتے ہیں۔ گھڑی کا ایک حصہ زمین پر گر جاتا ہے۔ بابا دین محمد: بیٹا فکر نہ کرو، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ علی نے سر ہلایا اور دوبارہ کوشش کرتے ہوئے حصہ اٹھایا۔ اگلے چند دنوں میں وہ سیکھنے کے لیے آتا ہے لیکن کئی بار غلطیاں کرتا ہے۔ ایک دن کا منظر، علی ایک کونے میں تھک کر بیٹھا ہے۔ علی: استاد جی، میں شاید یہ کام کبھی نہ سیکھوں، زندگی بس ایسی ہی ہے، اگر آپ اپنی جگہ پر ڈٹے رہیں گے تو کامیابی آپ کی ہوگی۔ علی کے چہرے پر عزم نمایاں ہے، وہ دوبارہ کام شروع کر دیتا ہے۔ گاہک: کیا یہ لڑکا اسے ٹھیک کر دے گا؟ بابا دین محمد: ہاں، وہ میرا طالب علم ہے، آج اس کی باری ہے۔ علی: ماسٹر، میں نے کر دیا۔ بابا دین محمد: ہاں بیٹا، یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی کامیابی صبر، محنت اور لگن میں ہے۔ صبر اور محنت زندگی میں کامیابی کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ ہر چھوٹا قدم بڑی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ کہانی بچوں کو صبر، محنت اور استقامت کی اقدار سکھاتی ہے۔ سورج چمکتا ہے جب تین دوست علی، عمر اور رفیق جنگل میں سے گزر رہے ہیں۔ علی: کتنا خوبصورت دن ہے، نئی جگہوں کو تلاش کرنا ہمیشہ مزہ آتا ہے۔ عمر: اور کون جانتا ہے، ہمیں کچھ دلچسپ مل سکتا ہے۔ رفیق: دلچسپ؟ میں صرف قیمتی چیز تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ اچانک رفیق کسی چیز پر چکرا گیا، وہ نیچے دیکھتا ہے اور ہانپتا ہے۔ رفیق: دیکھو، ایک بیگ۔ عمر اور علی تیزی سے آگے بڑھے، وہ تھیلا کھولتے ہیں اور ان کی آنکھیں پھیل جاتی ہیں۔ یہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ہے۔ عمر: سونا؟ ہم بہت خوش قسمت ہیں۔ علی: لیکن یہ سونا کس کا ہے؟ رفیق: کس کو پرواہ ہے، تلاش کرنے والے رکھوالے۔ دوست ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ علی: ہمیں مالک تلاش کرنا چاہیے یا منصفانہ طور پر شیئر کرنا چاہیے۔ رفیق: میں یہ سب اپنے لیے لے سکتا ہوں۔ وہ خفیہ طور پر اپنے دوستوں کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ انہیں زہر دینے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے کھانا لانے کی پیشکش کرتا ہے۔ اسی دوران عمر اور علی اس کے لالچ کو محسوس کرتے ہیں اور اپنا ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ رفیق کھانا لے کر واپس آتا ہے لیکن کھانے سے پہلے عمر بولتا ہے: عمر، رفیق، تیرا دل لالچ سے بھر گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم نوٹس نہیں کریں گے؟ علی نے کھانا خالی کرتے ہی رفیق گھبرایا۔ ایک پرندہ ایک ٹکڑا کھاتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ علی: تم سونے کے بدلے ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ رفیق: میں غلط تھا، میں نے لالچ کو اندھا کر دیا۔ عمر: سونا آتا اور جا سکتا ہے لیکن سچی دوستی انمول ہوتی ہے۔ دوست سونا گاؤں لے جانے اور ضرورت مندوں کو عطیہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ رفیق: اب سمجھدار، خوشی سے مدد کرتا ہے۔ علی: بانٹنے سے حقیقی خوشی ملتی ہے۔ رفیق: اور دوستی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی تینوں دوست ہنستے ہوئے چلے گئے۔ اختتام: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز و شاداب جنگل میں میکس نام کا ایک بہت ہی سست بندر رہتا تھا۔ میکس کو کیلے کھانا پسند تھا لیکن درختوں پر چڑھنے سے نفرت تھی۔ وہ ہر روز کیلے کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کیلے کے گود میں گرنے کے خواب دیکھتا۔ ایک دن میکس نے اپنے دوست ٹوٹو طوطے کو ایک پکے ہوئے آم پر چباتے ہوئے دیکھا۔ میکس نے پوچھا: ٹوٹو، تم بغیر کوئی کام کیے کھانا کیسے تلاش کرتے ہو؟ ٹوٹو ہنسا: میکس، میں اپنا دماغ اور اپنے پروں کا استعمال کرتا ہوں، تم بھی اپنا دماغ استعمال کرنے کی کوشش کرو۔ میکس نے سر کھجایا: شاید میں چلے بغیر کیلے حاصل کرنے کا کوئی ہوشیار منصوبہ بناؤں۔ اگلی صبح میکس نے ایک بڑی چھڑی پکڑی اور کیلے کے درخت کو ہلانا شروع کر دیا لیکن کیلے نہیں ہلے۔ اس کے بجائے شاخ پر بیٹھی ایک گلہری نے اسے ڈانٹا: ارے، میرے گھر کو ہلانا بند کرو، اے سست بندر۔ میکس نے معذرت کی اور بیٹھتے ہی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس نے جلدی سے کچھ پتے، لاٹھیاں اور ایک بڑا خالی ناریل کا خول اکٹھا کیا۔ پھر اس نے ان میں سے ایک نقلی بندر بنایا اور اسے بیل کے ساتھ درخت سے باندھ دیا۔ جنگل کے جانور متجسس ہو کر ارد گرد جمع ہو گئے۔ میکس اب کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے سرگوشی کی۔ میکس مسکرایا اور بولا: یہ میرا دوست ہے، مسٹر بننو، قلعہ جمع کرنے والا، اسے ایکشن میں دیکھو۔ میکس نے بیل کھینچی، جعلی بندر نے درخت کو ہلا دیا، آخر میں کیلے کا ایک گچھا گر گیا۔ میکس نے خوشی سے رقص کیا اور چیخ کر کہا: دیکھا، مسٹر بننو جنگل کا بہترین کارکن ہے۔ تمام جانور ہنسے اور تالیاں بجائیں، یہاں تک کہ گلہری نے اپنے درخت کو ہلانے پر میکس کو معاف کر دیا۔ اس دن سے میکس اپنی چالاکی کی وجہ سے مشہور ہو گیا لیکن پھر بھی اسے دوسرے جانوروں کے ساتھ کیلے بانٹنے پڑے، اور اس طرح میکس نے ایک اہم سبق سیکھا: بعض اوقات آپ کے دماغ کا استعمال صرف سست ہونے سے زیادہ مزہ دار ہو سکتا ہے۔ کہانی کا اخلاق: تخلیقی صلاحیت اور ٹیم ورک مشکل ترین مسائل کو بھی حل
एक बूढ़ा आलू था जो बलूत के दरख्त में रहता था। हर रोज वो अपने इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले वाकयात का मुशाहिदा करता था। कल उसने देखा कि एक नौजवान लड़के ने एक बूढ़े आदमी को भारी टोकरी उठाने में मदद की। आज उसने एक नौजवान लड़की को अपनी माँ पर चीखते हुए देखा। इसने जितना देखा इतना ही कम बोला। जैसे जैसे दिन गुजरते गए वो बोलता कम लेकिन सुनता ज्यादा। बूढ़े अलिफालू ने लोगों को बातें करते और कहानियां सुनाते सुना। इसने एक औरत को ये कहते हुए सुना कि एक हाथी बाढ़ के ऊपर से छलांग लगा रहा है। उसने एक आदमी को ये कहते हुए सुना कि उसने कभी गलती नहीं की। बूढ़े अलिफालू ने देखा और सुना था कि लोगों के साथ क्या होता है। कुछ बेहतर हो गए और कुछ बदतर हो गए, लेकिन दरख्त में मौजूद बूढ़ा अलिफालू रोज बरोज समझदार होता। एक पुरसुकून गांव में अरमान नाम का एक लड़का रहता था। ख्वाबों से भरे लेकिन फितरत के एतबार से बेसब्री। अरमान का ख्याल था कि सख्त मेहनत का फौरी सिला मिलना चाहिए। वो बहुत कम जानता था जिंदगी ने इसे सब्र की कदर सिखाने के अपने मंसूबे बनाए। अरमान को जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर हल चलाते हुए देखा गया। इसकी पेशानी पसीने से तर थी और बंजर मिट्टी को देखते हुए वो मायूस दिखाई दे रहा था। मैं इस जमीन पर हफ्तों से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई उन्नति नहीं है। शायद खेती मेरे लिए नहीं है, वो खुद से बुड़बुड़ाया। इसका बुजुर्ग पड़ोसी बाबा शफीक जो उसे दूर से देख रहा था करीब आया। अरमान, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बाबा शफीक ने पूछा। बाबा, मैंने सब कुछ किया है, मिट्टी को पानी पिलाया, बीज लगाया, फिर भी कुछ नहीं उगता। शायद मैं इसके लिए नहीं हूँ, अरमान ने जवाब दिया। बाबा शफीक ने मुस्कुराते हुए नसीहत की। सब्र करो मेरे लड़के, मेहनत का फल हमेशा फौरन नजर नहीं आता, तुम्हें अमल पर भरोसा करना चाहिए। अरमान ने नफी में सर हिलाया और चला गया। बाबा शफीक ने बाद में अरमान को अपने बाग में मदू किया जहाँ बांस का एक लंबा दरख्त हुआ के झुमके में हल्का फुल्का। क्या तुम ये बांस का दरख्त देख रहे हो अरमान? इसकी जड़ों को उगने में 5 साल लग गए इससे पहले कि वो उगे। सालों तक मैंने जमीन के एक खाली टुकड़ों को पानी पिलाया, यकीन रखते हुए कि एक दिन ये बढ़ेगी। अरमान ने तजस्सुस से पूछा, आप इस चीज का इंतजार क्यों करेंगे जिसमें इतनी देर लग जाए? क्योंकि जिंदगी की मजबूत तरीन चीजों को बढ़ने में वक्त लगता है। ये सिर्फ इस बात का नहीं है कि आप जमीन के ऊपर किया देखते हैं, बल्कि इसके नीचे आप जो बुनियाद बनाते हैं, बाबा शफीक ने जवाब दिया। मुतासिर होकर अरमान अपने मैदान में वापस आ गए। इस बार उसने अनथक मेहनत की, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ। अरमान को मालूम हुआ कि सब्र उसके ख्वाबों को खोलने की किलीद है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, फिर भी वो डटा रहा। मौसम गुजरे, बारिश, धूप और हुआ के जरिए काम करने वाले अरमान का एक मोन्टेज। एक सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें खेत से टकराई, अरमान ने देखा कि मिट्टी से छोटे छोटे सब्ज उनकरे निकल रहे हैं। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। ये बढ़ रहा है, ये आखिरकार बढ़ रहा है, उसने जोश से कहा। बाबा शफीक नमूदार हुए, आहिस्ता से तालियां बजाएं। देखो अरमान, ये तुम्हारा इस सब्र का इनाम है, तुम्हारे सब्र और मेहनत का सिला। कैमरा अरमान के फलते फूलते खेत को देख रहा था जब गांव वाले इसके काम की तारीफ करने के लिए जमा थे। इस ओवर का इख्तिताम हुआ। सब्र सिर्फ इंतजार के बारे में नहीं है, ये आपके इंतजार के दौरान ईमान को बरकरार रखने के बारे में है। अरमान का सफर हमें याद दिलाता है कि हकीकी इनाम उन्हीं को मिलता है जो उम्मीद और अज़्म के साथ बर्दाश्त कर। एक दिन जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत घास का मैदान था जहाँ तमाम जानवर खेलने और हंसने के लिए जमा थे। जादू नाम का एक खरगोश था। ताहम जादू की एक बुरी आदत थी, वो बहुत लालची था। सब जानवर मिलकर खेल खेल रहे थे। बंदर एक गेंद को उछाल रहा था, हाथी उसे अपनी सूंड से पकड़ रहा था और खरगोश अपने तेज कदमों से गेंद के पीछे दौड़ रहा था। अचानक जादू ने कहा, ये गेंद मेरी होगी, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ, इसलिए गेंद मेरी है। जादू ने चुपके से गेंद को छुपा दिया और कहा, अब देखते हैं कौन खेलता है। लेकिन जैसे ही जादू गेंद के साथ भागा, वो जमीन में एक सुराख में गिर गया। तमाम जानवर हंसने लगे और बंदर ने मजाक में कहा, जादू गेंद से दौड़ने के बजाय अपने दिमाग से दौड़ो। शर्मिंदगी महसूस करते हुए जादू सुराख से बाहर निकला और कहा, मुझसे गलती हुई, मैं बहुत लालची था, अब से मैं सबके साथ खेलूंगा। तमाम जानवर जादू के वादे से खुश हुए और दोबारा खेलने लगे। जादू ने सीखा कि खुशी सबके साथ बांटने से मिलती है, लालची होने से नहीं। अखलाकी सबक, लालच बुरी चीज है, खुशी और दोस्ती बांटने से बढ़ती है। दरख्तों में से सूरज की रोशनी के साथ एक खूबसूरत जंगल। परिंदे चहचहाते हैं और जानवर खुशी से खेलते हैं। एक जमाने में एक सरसब्ज और शादाब जंगल में एक खूबसूरत हिरन रहता था। इसके पास पूरे जंगल में सबसे खूबसूरत सींग थे। वो हर रोज उनकी तारीफ करना पसंद करता था। हिरन एक साफ तालाब की तरफ जाता है और अपने अक्स को देखता है। हिरन, मेरे सींगों को देखो, वो बहुत बड़े और शानदार हैं। हर किसी को मुझसे हसद करना चाहिए। हिरन अपनी पुतली पुतली टांगों को अक्कासी में देखता है और भौंकता है,
हिरन, लेकिन मेरी टांगें वो बहुत पुतली और कमजोर हैं। कितनी बदसूरत नजर आती है। एक शिकारी खान की आवाज जंगल में गूंजती है। हिरन के कान खौफ के मारे खड़े हो गए। तभी हिरन ने खतरे की आवाज सुनी। करीब ही एक शिकारी था। हिरन भागने लगता है। इसकी मजबूत टांगें इसे तेजी से जंगल में ले जाती है। अलबत्ता इसके सींग दरख्त की शाखों में फंस जाते हैं। घबरा कर, अरे नहीं, मेरे सींग फंस गए हैं, काश मेरे पास ये भारी सींग न होते। हिरन जिदोजहद करता है और आखिरकार शिकारी से भागता हुआ खुद को आजाद कर लेता है। वो झाड़ी में छप जाता है, कांपता और महफूज रहता है। हिरन को इस दिन एक अहम चीज का एहसास हुआ। जिस टांगों को वो बदसूरत समझता था उसने इसकी जान बचाई थी, जबकि वो सींग जिनसे वो बहुत प्यार करता था तकरीबन इसके गिरने का सबब बन चुका था। मैं अपनी टांगों के बारे में शिकायत करना बेवकूफ था, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हिरन मुस्कुराता है और जंगल में वापस चला जाता है। अब इसकी टांगों की तारीफ करता है और इस तरह बेवकूफ हिरन ने एक कीमती सबक सीखा। कभी भी किसी चीज को इसकी शक्ल से मत जानो। सबसे अहम बात यह है कि ये जिंदगी में हमारी मदद कैसे करता है। हिरन खुशी से जंगल में अपने जानवरों के दोस्तों से मिलता है और वो सब मिलकर खेलते हैं। आपके YouTube चैनल के लोगो और सब्सक्राइब करें के बटन पर। स्क्रीन के धुंधला होने के साथ ही तफरीही। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली एक सुस्त और लापरवाह लड़का था जो जिंदगी में वक्त की अहमियत को नहीं समझता था। वो अपने दिन खेल कूद में गुजारता और हमेशा अहम कामों को बाद के लिए मुलतवी कर देता। इसकी माँ इसे अक्सर नसीहत करती थी, बेटा वक्त बहुत कीमती है, एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। लेकिन अली ने इसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन एक दाना बुजुर्ग गांव में तशरीफ लाए। लोग उसके पास अपनी परेशानियों का हल तलाश करने जाते। अली की वालिदा ने सोचा कि शायद ये बुजुर्ग अली को वक्त की कदर का एहसास दिलाएगा। वो अली को अपने पास ले गईं और कहने लगी, मोहतरम बुजुर्ग, मेरा बेटा वक्त की कदर नहीं करता, बराए मेहरबानी इसे मशवरा दे। बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अली की तरफ देखा और कहा, बेटा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक जमाने में एक सौदागर था जो हमेशा वक्त की कदर करता था। वो जल्दी उठता, अपने कामों को खत्म करता और हमेशा खुशी से रहता। एक दिन एक फरिश्ता इसके पास आया जो उसे वक्त का तोहफा देना चाहता था। रिश्ते ने कहा, मैं तुम्हें रोजाना 86,400 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम उन सबको दिन खत्म होने से पहले खर्च कर दो, वरना वो जाये हो जाएंगे। सौदागर ने ये पेशकश कबूल कर ली और सिक्के को रोजाना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो अपने खानदान, दोस्तों और जरूरतमंदों की मदद करता और अपने कारोबार को आगे बढ़ाता। लेकिन एक दिन फरिश्ता सौदागर के पास आया और कहा कि अब मैं तुम्हें मजीद सिक्के नहीं दूंगा, तुमने उनका खूब इस्तेमाल किया, लेकिन अब वक्त खत्म हो गया है। किस्सा सुनाने के बाद बुजुर्ग ने अली से कहा कि बेटा, हमारी जिंदगी के हर दिन में 86,400 सेकंड होते हैं जो सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती होते हैं। अगर हम उनको समझदारी से इस्तेमाल करें तो हमारी जिंदगी खुशियों से भर सकती है, लेकिन अगर हम जाया कर दें। अली ने गौर से सुना और इस बात से बहुत मुतासिर हुआ। इसने हर लम्हा अपना वक्त और कीमत जाया न करने का फैसला किया। इस दिन के बाद अली ने अपनी जिंदगी बदल दी। इसने अपना काम वक्त पर करना और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर दी। गांव के लोग उसकी तब्दीली देखकर हैरान हुए और उसकी तारीफ करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज है। हमें इसे जाया करने के बजाय अपनी जिंदगियों को कामयाब और खुशहाल बनाने के लिए समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। पुरानी हवेली के करीब अली। दोस्तों, यह हवेली वाकई अजीब लग रही है। लोग कहते हैं रात को यहाँ से आवाजें आती हैं। ज़ारा, अली, तुम हमेशा इतना डरते क्यों रहते हो? ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। फरहान, चलो अंदर जाकर चेक करते हैं, शायद हमें कोई खजाना मिल जाए। हवेली के अंदर तीनों अंदर दाखिल होते हैं। अचानक एक मध्यम आवाज सुनाई देती है। ज़ारा, वो क्या आवाज थी? अली, मैंने तुमसे कहा था ये जगह अजीब है, हमें वापस जाना चाहिए। फरहान, बुज़दिल, कुछ नहीं होगा। तीनों आगे बढ़ते हैं। अचानक एक पुरानी अलमारी का एक दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। अंदर से एक पुराना नोट बरामद होता है। ज़ारा, यहाँ आया, वापस नहीं आ सका। अली, बस मैंने सोचा कि हम सब के लिए हो चुके हैं। पुरस्कार आवाज, ज़ारा, ये तस्वीर वाकई हल रही है। फरहान, ये मजा आने वाला है। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, यहाँ क्यों आए हो? अली, भागो। राज का इंकिशाफ। तीनों ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। एक पुरस्कार साया उनके सामने नमूदार होता है। साया, रुक जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ज़ारा, तुम कौन हो? साया, मैं इस हवेली का मालिक था, लेकिन एक हादसे के बाद मैं यहाँ फंस गया। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। फरहान, हम कैसे मदद कर सकते हैं? साया, मेरे पुराने सामान में एक संदूक है, बाहर ले जा। इसमें मेरा खत है जो मेरी असीरी को खत्म कर सकता है। तीनों ने सीने को तलाश किया और इसे बाहर ले गए। खत को पढ़ने के बाद साया गायब हो जाता है। हवेली का दरवाजा खुद से खुल जाता है। ये वाकई खौफनाक था। ज़ारा, लेकिन ये भी दिलचस्प। फरहान, मैं फिर आऊंगा। दोनों हंसते हुए चले जाते हैं, लेकिन हवेली के करीब एक दरख्त पर एक पुरस्कार चेहरा नजर आता है।
एक छपी हुई वादी में जो बुलंद चोटियों से गहरा हुआ, इसी दूसरे के बरक्स एक दरिया बहता था। एक जादुई दरिया ने कहा कि जिंदगी का जौहर खुद को थामे हुए है। लेकिन एक दिन दरिया की चमक खत्म होने लगी। गांव के जरिए सुबह की रोशनी फिल्टर, लोग पानी लाते हैं, बच्चे खेलते हैं और बुजुर्ग दरिया के पास बैठते हैं। एक बूढ़ी औरत बच्चों से कहती है, ठूठो याद रखो, जादू का दरिया हमारी लाइफ लाइन है। ये हमारी फसलों को बरकत देता है, हमारे बीमारों को शिफा देता है और हमारी वादी को जिंदा रखता है। एक नौजवान लड़का अरविंद मुतजस्सिस और पुरज़्म पूछता है, लेकिन दादी ये क्या चीज जादुई बनाती है? बूढ़ी औरत मुस्कुराती है और कहती है, लेजेंड कहते हैं कि दरिया की हिफाजत छपी हुई रूह से होती है। यह तभी फलती फूलती है जब हम फितरत का एहतराम और हिफाजत करते हैं। एक साया मंजर को उबूर करता है जब अरविंद को पानी में कोई गैर मामूली चीज नजर आती है। अरविंद पानी में झांकता है और एक मध्यम धुंधला धब्बा फैलता हुआ देखता है। मछलियां तैरने के लिए जिदोजहद करती हैं और दरिया के किनारे पौधे मुरझाने लगते हैं। अरविंद घबरा कर चलाया, कुछ गड़बड़ है, दरिया बीमार है। वो गांव के चौक की तरफ भागता है जहां बुजुर्ग जमा होते हैं। मुताल्लिका गांव के सरबराह का कहना है कि हमने दरिया की रूह को नाराज कर दिया है। हमारी बर्बादी, लालच और गफलत ने हम आहंगी को तोड़ा है। बूढ़ी औरत पूछती है, लेकिन हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? रूह नस्लों में नहीं देखी गई। वो अरविंद आगे बढ़ता है, इसकी छोटी सी शख्सियत भीड़ से बोनी हो जाती है और कहता है, मैं दरिया की रूह को तलाश करूंगा और मुआफी मांगूंगा। देहाती बेएतबारी से बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन सरदार संजीदगी से सर हिलाता है। गाँव के सरबराह ने मजीद कहा, सफर खतरनाक है, लेकिन आपका पाक दिल हमारी वाहिद उम्मीद हो सकती है। अरविंद शदीद तूफानों, जंगली जानवरों और नाहमवार इलाकों का सामना करते हुए जंगल की तरफ रवाना हुआ। हर कदम के साथ अरविंद की हिम्मत बढ़ती गई। उसका दिल एक गैर मुतज़लज़ल यकीन से रहनुमाई करता था कि दरिया बचाने का मुस्तहिक है। अरविंद एक पोशीदा आबशार तक पहुँचता है जहाँ दरिया बेहोश होकर चमकता है। वो पानी के पास घुटने टिकुता है और पुकारता है, दरिया की रूह, बरा करम मेरी बात सुनो, मैं चीजें ठीक करने आया हूँ। पानी घूमना शुरू होता है और एक नूरानी शख्सियत उभरती है, एक शानदार दरिया की रूह। दरियाए रूह नरम लेकिन ताकतवर कहती है, तुमने बहादुरी का मुजाहिरा किया है, लेकिन सिर्फ अल्फाज ही दरिया को ठीक नहीं कर सकते। क्या तुम तवाज़ुन बहाल करने का बोझ उठाओगे? बगैर किसी हिचकिचाहट के अरविंद जवाब देता है, मैं करूँगा। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। रूह अरविंद को अपने दिल की पाकीज़गी का इस्तेमाल करते हुए दरिया को साफ करने का काम देती है। वो पानी में घूमता है, उजला जमा करता है और गंदे धब्बों को ठीक करता है। हर कोशिश इसे बहा देती है, लेकिन दरिया की चमक को मजबूत करती है। जैसे जैसे अरविंद काम करता है, रूह देखती है, उसका इजहार नर्म होता है। दरियाए रूह कहता है, आपकी बेलोस ने दरिया की हकीकी ताकत को जगा दिया है। आप अपने लोगों को याद दिलाते हैं कि वो क्या भूल गए हैं, शुक्रगुजारी और फितरत की देखभाल। अरविंद गाँव वापस आया। इसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन इसका चेहरा ताबनाक था। इसके पीछे दरिया एक बार फिर शानदार तरीके से चमकता है, जिंदगी से भरा हुआ है। गाँव वाले खुश हो रहे हैं। अरविंद ने जादुई नदी को बचाया। विलेज चीफ कहता है, नहीं, उसने हमें हमारा फर्ज याद दिलाया। उसे एक सबक बनने दो। हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए जो हमारी हिफाजत करता है। दरिया चांदनी में चमकता है। अरविंद इसके किनारे पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है, जैसे पानी के ऊपर फायर फ्लाइज रक्स करती हैं। एक लड़के की हिम्मत ने एक भूले हुए बंधन को दोबारा जिंदा कर दिया। जादू का दरिया ताकत के जरिए नहीं, बल्कि मोहब्बत, एहतराम और जवान दिल की पाकीज़गी से परवान चढ़ा। जुर्रत, जिम्मेदारी और फितरत के साथ हम आहंगी की कहानी। एक दिन एक खरगोश कछुए से मिला। इसने कछुए की सुस्त रफ्तार का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी ही टांगे हैं जितनी मेरी हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इतनी तेजी से नहीं भाग सकते जितनी मैं कर सकता हूँ। गालिबन अब बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। इस पर खरगोश बहुत खुश हुआ, तो इसने कहा, चलिए रेस के लिए एक तारीख तय करें। उन्होंने एक तारीख तय की और रेसिंग का दिन आ गया। कछुआ और खरगोश नुक्ता आगाज पर आ गए। दौड़ शुरू हुई और खरगोश बहुत तेजी से दौड़ने लगा। खरगोश ने छलांग लगाई और छलांग लगाई और चंद मिनटों में 1 मील दौड़ गई। जल्द ही इसने कछुआ अपने पीछे बहुत पीछे पाया। फिर वो रुक गई और सोचा, कछुए के ऊपर आने से पहले मैं अच्छी तरह सो सकती हूँ। ये कहकर खरगोश झाड़ी में सो गया। इतने में कछुआ चलता चला गया। वो कहीं नहीं रुका। जब इसने झाड़ी के पास आकर सुस्त खरगोश को सोए हुए देखा तो वो मुस्कुराया और खामोशी से बगैर रुके इसके पास से गुजर गया। कुछ देर बाद खरगोश बेदार हुआ। इसने देखा कि शाम हो चुकी है। वो फौरन अपने पाँव पर खड़ा हो गया। वो बहुत तेज भागने लगी, लेकिन अफसोस, कछुआ पहले ही विनिंग पोस्ट को उबूर कर रहा था। खरगोश ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। इसने अब अपने आप से कहा, ये सच है कि सुस्त और साबित कदमी ही एक रोशन सुबह एक ताकतवर तूफान गुजरने के बाद एक नौजवान लड़का साहिल के साथ चल रहा था। तूफान ने हजारों सितारों की मछलियों को साहिल पर धो डाला था, जिससे वो रेत पर फंस गई थी। जूं जूं लहर मजीद कम हुई, सितारा मछली खुश्क होने लगी, जिंदा रहने के लिए जिदोजहद कर रही थी। लड़के को दुख हुआ जब इसने साहिल समंदर को बहुत से बेबस मखलूकात से भरा हुआ देखा। इसने नीचे झुककर एक सितारा मछली उठाई और आहिस्ता से इसे वापस समंदर में फेंक दिया। वहाँ से चलते एक आदमी ने लड़के की कोशिशों को देखा और कहा लगाया, तुम ऐसा
ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। यहाँ बहुत सारी स्टार फिश हैं, आप मुमकिना तौर पर फर्क नहीं कर सकते। लड़का खामोशी से सुनता रहा, फिर झुककर एक और सितारा मछली उठाकर समंदर में फेंक दी। इस आदमी की तरफ मुतवज्जे होकर इसने कहा, इससे इसमें फर्क पड़ा। आदमी ने एक लम्हे के लिए रुक कर सोचा, फिर एक मुस्कुराहट के साथ वो लड़के के साथ शामिल हुआ। सितारा मछली को उठाकर वापस समंदर में फेंक दिया। वहाँ से गुजरने वाले दूसरे लोगों ने देखा कि वो क्या कर रहे हैं और इसमें शामिल हो गए। उन्होंने मिलकर बहुत सी फंसे हुए सितारों की मछलियों को बचाने में मदद। एक अजीब छोटे गांव में एक जादुई दरख्त जिसका नाम काइंडनेस ट्री है बीच में ऊंचा खड़ा है। दरख्त सुनहरी पत्ते उगता है, लेकिन जब कोई एहसान का काम करता है। लेला, एक मुतजस्सिस और नर्म दिल लड़की, दरख्त को सुनहरी पत्तों से चमकता देखने का ख्वाब देखती। जैन, एक शरारती लड़का, समझता है कि मेहरबानी बेकार है। एक दिन गाँव वालों ने देखा कि दरख्त ने सुनहरी पत्ते पैदा करना बंद कर दिए। लेला ने तहकीक करने का फैसला किया और एक पुरानी किताब से सीखा कि दरख्त को फलने फूलने के लिए मेहरबानी की जरूरत। जैन ने इसे छेड़ते हुए कहा, मेहरबानी कुछ ठीक नहीं करेगी। लेला रहमदिली के कामों को अंजाम देने के लिए निकलती है, जैसे एक जिदोजहद करने वाले बीकर की मदद करना, एक बलि के बच्चे को बचाना और बूढ़े आदमी की टूटी हुई टोकरी को ठीक करना। इसकी कोशिशों के बावजूद दरख्त नंगा रहता है। जैन चुपके से इसका पीछा करता है, मुतजस्सिस लेकिन इसे तस्लीम करने को तैयार नहीं। एक तूफान गांव से टकराया, जिससे करीबी डैम में शिगाफ पड़ गया। गांव वाले खौफजदा हैं क्योंकि उनके घरों को खतरा है। लेला मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन वो इसे अकेले ठीक नहीं कर सकती। इसकी हिम्मत देखकर जैन ने आखिरकार कदम उठाने और मदद करने का फैसला किया। उनके टीम वर्क से मुतासिर होकर पूरा गांव डैम की मुरम्मत और अपने घरों की हिफाजत के लिए इकट्ठा होता है। इस वक्त दरख्त जिंदगी में फंस जाता है, पहले से कहीं ज्यादा चमकता है, सुनहरी पत्ते रात को रोशन करते। जैन एहसान की कदर सीखता है और लेला से इसका मजाक उड़ाने पर माजरत करता है। गांव वालों को एहसास है कि मेहरबानी उनकी बरादरी की ताकत की जड़ है। मेहरबानी वो बीज है जो हर एक के लिए खुशी का दरख्त बनता है। चमकते सुनहरी पत्तों के साथ एक जादुई चमकता हुआ दरख्त, गर्म रंगीन हरकत पजीरी के साथ मुतहर्रिक गांव के मनाजिर, टीम वर्क और दोस्ती के दिल दहला देने वाले लम्हात। एक बार एक खूबसूरत गांव में हर चीज किसी भी दूसरी पुरम सुबह की तरह आम से शुरू हुई। मुतहर्रिक परिंदे सुरीली आवाज में चहचहा रहे थे, जबकि बच्चे पस मंजर में खुशी से खेल रहे थे। अली एक छोटा लड़का था जो इस गांव में रहता था, अपनी रोजमर्रा की रसूमात में हिस्सा लेता था। लेकिन पुरम गांव के दूसरों के बरक्स अली हमेशा खौफनाक जल्दी में रहता था। मुझे सबसे पहले सब कुछ खत्म करना होगा, मुझे देर करना पसंद नहीं है, अली ने झुंझलाकर कहा। इसकी आवाज़ इसके तेज कदमों के साथ मिल रही थी जब वो गंदे बालों और बेचैन हाथों के साथ उधर उधर भाग रहा था। एक सुबह अपने जूतों के तस्मे बांधने और नाश्ता करने की कोशिश करते हुए अली ने हर जगह दूध बहा दिया। ये देखकर उसकी माँ ने तशवीश से सर हिलाया। अली, हर काम खुश असलूबी से करो, जल्दी करना मुसीबत ही का बाइस बनता है। लेकिन अली ने सिर्फ कंधे उचक्का कर जवाब दिया, माँ, अगर मैं जल्दी ना करूं तो बहुत से काम अधूरा रह जाएंगे। अपना स्कूल बैग पकड़े अली तेजी से बाहर निकला, करीब करीब अपने दोस्त अहमद से टकरा गया। अली, सुस्त हो जाओ, तुम्हें हमेशा इतनी जल्दी क्यों होती है? अहमद ने चौंक कर कहा। अली ने बस कहा लगाया, मुझे सब कुछ पहले करना पसंद है। अली, स्कूल के मेले के लिए ये पेंटिंग एहतियात और सब्र के साथ करनी चाहिए, उस्ताद ने हिदायत की। अली एतमाद से भरा हुआ उसे यकीन दिलाया, बिल्कुल उस्ताद, मैं सबसे तेजी से खत्म करूंगा। वो तेज था, लेकिन अपनी सरगर्मी के भंवर में उसने रंगों को छेड़ दिया, गलतियों को नजरअंदाज करते हुए पेंटिंग को गंदा और नामुकम्मल छोड़ दिया। मेले के दौरान सब ने दूसरे बच्चों की साफ सुथरी पेंटिंग्स की तारीफ की, लेकिन जब अली की बारी आई तो सरगोशियां गर्दिश करने लगे। ये नामुकम्मल लगता है, रंग हर तरफ धुंधले पड़े हैं। अली ने शर्मिंदा होकर अपनी जल्दबाजी से होने वाली गलती का एहसास करते हुए नीचे देखा। इसके उस्ताद ने शफकत से कहा, अली देखो जल्दी किस तरफ ले जाती है, थोड़ी ज्यादा तवज्जो और वक्त होता तो ये खूबसूरत होता। गौर करते हुए अली को अपनी गलती समझ आई। बाद में अहमद के साथ अली ने एहतियात और सब्र के साथ पेंटिंग को दोबारा तैयार किया। वाह अली, क्या शानदार काम किया है तुमने, अहमद ने अली की तारीफ करते हुए कहा। हाँ, मैंने सीखा है कि जल्दी करना सिर्फ गलतियों का सबब बनता है, हर काम को ध्यान और एहतियात से करना बेहतर है। अली की खूबसूरती से दोबारा बनाई गई पेंटिंग को हर किसी की तरफ से तालियों के साथ फखर से दिखाया गया। अली ने सीखा कि जल्दबाजी कभी कामयाब नहीं होती। रावी ने सोचा, अली खुशी से अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। याद रखो दोस्तों, जल्दी करने से गलती होती है, लेकिन सब्र और कोशिश कामयाबी की तरफ ले जाती है। तमाम बच्चों के लिए अखलाक वाज़े था। जल्दबाजी हमेशा नुकसान पहुंचाती है, जबकि सब्र कामयाबी का बदला देता है।
एक दफा एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उनके 4 बेटे थे। वो हर वक्त एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। किसान ने उन्हें इत्तेहाद पैदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसकी नसीहत पर कभी कान न धुरे। वो उनके मुस्तकबिल के बारे में बहुत फिक्रमंद था। एक दिन बूढ़ा किसान बीमार हो गया और उसने फैसला किया कि इसे अपने बेटों में इत्तेहाद लाना चाहिए। इसने अपने बेटों को बुलाया और चंद लाठियां लाने को कहा। वो लाठियां ले आए। किसान ने बड़े बेटे को पोटली में बांधने को कहा। फिर इसने उनसे कहा कि वो इसे तोड़ने के लिए अपनी ताकत आजमाएं। हर बेटे ने बंडल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर किसान ने बंडल को खोला और हर एक को एक छड़ी दी और इसे तोड़ने को कहा। उनमें से हर एक इसे आसानी से करने के काबिल था। किसान ने कहा, अब तुम समझ गए हो, अगर आप मुत्तहिद हैं तो कोई भी आपसे बेहतर नहीं हो सकता। लेकिन अब झगड़ते रहें, अब किसी से टूट जाएंगे। एक छोटे से हलचल से भरे गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था। अपनी बेपनाह दौलत के लिए जाना जाता है। इसके पास वो सब कुछ था इसका कोई ख्वाब देख सकता था, सोना, जमीन और असर और रसूख। फिर भी अर्जुन परेशान था। वो जानना चाहता था कि क्या अब भी दुनिया में एहसान बाकी है या लालच ने लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। जवाब तलाश करने के लिए पुरज़्म अर्जुन ने अपने आसपास के लोगों की मेहरबानी को जांचने का फैसला किया। इसने अपने आप को एक बेसहारा आदमी का रूप धार लिया, पटे हुए कपड़ों में मलबूस अपने चेहरे को गंदगी से आलूदा किया और अपनी शनाख्त छुपा रखी थी। सड़कों पर निकलते हुए वो सब्जियों की एक टोकरी के साथ जिदोजहद कर रहे एक मसरूफ ताजिर के पास पहुंचा। मदद के लिए हाथ बढ़ाया। मेहरबान जनाब, क्या आप कुछ खाना बचा सकते हैं? मैंने कई दिनों से नहीं खाया, उसने कमजोर आवाज में इल्तिजा की। सौदागर ने चौंक कर ताना दिया, दफ हो जाए यहाँ से। मैं अपने पैसे के लिए मेहनत करता हूँ और मैं उसे तुम जैसे भिखारियों पर जाया नहीं कर रहा हूँ। मायूस होकर अर्जुन अपना सर झुकाकर वहाँ से चला गया, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो दौलत से ज्यादा एहसान की कदर करे। वो थक हार कर एक मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। एक अच्छे लिबास में मलबूस औरत अपने बच्चे के साथ चल रही थी। मैडम प्लीज, बस रोटी का एक टुकड़ा, उसने इल्तिजा की। औरत ने अपने बच्चे को करीब करके अर्जुन की तरफ नफरत से देखा। दूर रहो, तुम हमारी बदकिस्मती लेकर आओगे, इसने जवाब दिया। दोबारा मुस्तरद कर दिया गया। अर्जुन ने दबाव डाला, तलाश जारी रखने का अज़्म किया। गांव के किनारे पहुंचकर इसे एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। एक नौजवान लड़का कबीर हाथ से बने हुए लकड़ी के खिलौने से बाहर खेल रहा था। बच्चे, क्या तुम्हारी माँ घर? मैं भूखा हूँ और मेरे पास जाने की जगह नहीं है, अर्जुन ने पूछा। कबीर तेजी से अंदर गया और अपनी माँ मेरा को बाहर लाया, जिसने तशवीश से अर्जुन की तरफ देखा। बड़ा करम, अंदर आए, हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन हम जो कुछ हमारे पास है वो बांटेंगे, उसने कहा। मेरा ने अर्जुन को सादा दलिया का एक प्याला पेश किया और इसे आराम करने की जगह पेश की। अगली सुबह अर्जुन ने मेरा और कबीर को अपनी असल शनाख्त जाहिर जानकर वो झक गए, लेकिन इसने उन्हें रोक दिया। तुमने मुझे दिखाया है कि सच्ची मेहरबानी कैसी होती है। बहुत कम होने के बावजूद तुमने बहुत कुछ दिया। आपकी शफकत ने इंसानियत पर मेरा एतमाद बहाल कर दिया है। उन्होंने मेरा को सोने के सिक्कों की एक छोटी थैली देते हुए कहा, ये कोई इनाम नहीं है बल्कि मेरी शुक्रगुजारी का निशान है। अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करें और याद रखो, एहसान सबका सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन मुस्कुराते हुए अपनी हवेली में वापस आया। जैसे ही मेरा और कबीर ने अलविदा किया, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। कहानी का इख्तिताम होता है, मेहरबानी की कोई कीमत नहीं बल्कि सब कुछ। आज किसी की जिंदगी में रोशनी बनी। एक दिन लुमड़ी को बहुत भूख लगी। वो खाने की तलाश में बाहर निकला। इसने ऊंच नीच की तलाश की, लेकिन खाने को कुछ ना मिला। आखिरकार जैसे ही इसके पेट में गड़बड़ हुई, वो एक किसान की दीवार से टकरा गया। दीवार के ऊपर उसने सबसे बड़े रसीले अंगूर देखे जो उसने कभी नहीं देखे थे। वो एक अमीर जामनी रंग के थे जो लुमड़ी को बताते थे कि वो खाने के लिए तैयार है। अंगूर तक पहुंचने के लिए लुमड़ी को हुआ में ऊंची छलांग लगानी थी। जैसे ही इसने छलांग लगाई, लुमड़ी ने अंगूर पकड़ने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वो छूट गया। इसने चंद बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। आखिरकार लुमड़ी ने हार मानकर घर जाने का फैसला किया। चलते चलते वो बुड़बुड़ाया, मुझे यकीन है कि अंगूर वैसे भी खट्टे थे। एक अंधेरी रात में आसमान को ढकने वाले बादलों के साथ चमक नामी एक छोटा सा कीड़ा अपने घर से बाहर निकला। वो जोश से भरा हुआ था क्योंकि उसने सुना था कि करीब ही एक बहुत बड़ा हुई रोशनी देखी। वो तेजी से रोशनी की तरफ उड़ गया। ज्यों-ज्यों वो करीब आया, रोशनी का दायरा बड़ा होता गया। गलीटर बहुत बेसब्रा था। इसे मालूम होना चाहिए था कि रोशनी के बहुत करीब जाना खतरनाक हो सकता है। वार्बल स्टार नामी एक और कीड़े के पास गया और गलीटर की कहानी शेयर की। आखिरकार इसके परों में जलना
शुरू हो गया और वो दर्द से चीखा और गिर पड़ा, फिर कभी न उठने के लिए। करीब ही एक दरख्त की शाख पर वार्बल नाम का एक छोटा परिंदा बैठा था। इसने सारा वाकया देखा और अफसोस का इजहार किया। सितारा ने गौर से सुना और कहा, ग्लिटर ने अपनी जिंदगी रोशनी की तलाश में गुजार दी, लेकिन इसे कभी समझ नहीं आई। रोशनी खूबसूरत है, लेकिन इसके बहुत करीब जाना हमेशा खतरनाक है। स्टार ने मजीद कहा, हमें रोशनी की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, लेकिन हमें मोहतात भी होना चाहिए। हमें अपनी हुदूद को समझने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। स्टार वार्बल की बात समझ गया। इसने फैसला किया कि वो रोशनी के करीब पहुंच जाएगा, लेकिन एहतियात के साथ। वो रोशनी के अर्द गिर्द फड़फड़ाता, उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होता, लेकिन कभी ज्यादा करीब नहीं जाता। कहानी हमें एक सबक सिखाती है कि हर चीज की अपनी हद होती है। हमें अपने मकासद के हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी हुदूद को भी समझना चाहिए। हमें एहतियात के साथ आगे बढ़ना चाहिए और खतरे से दूर रहना चाहिए। अली अपनी दुकान पर खड़ा इसे साफ कर रहा है। बिलाल आता है और हुजूम वाले बाजार में तबसरा करता है और तजवीज करता है कि अली के अच्छे ग्राहक होंगे। अली अज़्म के साथ जवाब देता है, इस यकीन के साथ कि इसका ईमानदाराना काम कुदरती तौर पर उसके रिस्क में इजाफा करेगा। एक बुजुर्ग परेशान नजर आते हुए दुकान में दाखिल होता है और अली से कहता है कि इसने दुकान के पास कुछ पैसे खो दिए। अली ने हमदर्दी से इसे यकीन दिलाया और दुकान के करीब से एक नोट मिला से मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को वापस कर दिया। बुजुर्ग अली की ईमानदारी से खुश इसकी कामयाबी के लिए दुआ मांगता है। बिलाल ने रिमार्क्स दिए कि अली किसी के इल्म में लाए बगैर रकम रख सकता था, लेकिन अली का इसरार है कि हलाल रिस्क ही असल अहमियत रखता है। अगले दिन बुजुर्ग वापस आया, जो अब एक अमीर आदमी का लिबास पहने हुए है और ये जाहिर करता है कि इसने अली की ईमानदारी का इम्तिहान लिया। वो अली को कारोबारी सामान तोहफे में देता है और इस दुकान को अली के कारोबार का आगाज करार देता है। अली ने खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली की ईमानदारी हर एक के लिए एक सबक का काम करती है। ये वाजे करती है कि ईमानदारी हमेशा बेहतरीन इनाम। एक दफा एक लड़का था जो पहाड़ी किनारे गांव की भेड़ों को चरते देखकर बोर हो गया। अपने आप को तफरीह करने के लिए उसने गाया, भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है। गांव वालों ने रोने की आवाज सुनी तो वो भेड़िए को भगाने के लिए पहाड़ी की तरफ भागे, लेकिन जब वो पहुंचे तो उन्होंने कोई भेड़िया नहीं देखा। लड़का उनके गुस्से से भरे चेहरे देखकर खुश हुआ। जब भेड़िया ना हो तो भेड़िए को मत चीखो करके गांव वालों ने खबरदार किया। वो गुस्से से वापस पहाड़ी से नीचे चले गए। बाद में चरवाहे के लड़के ने एक बार फिर पुकारा, भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है। की तफरीह के लिए देहाती भेड़िए को डराने के लिए पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए। अब इन्होंने देखा कि वहाँ कोई भेड़िया नहीं है। इन्होंने सख्ती से कहा, अपनी खौफजदा आवाज को इस वक्त के लिए बचाएं जब वाकई कोई भेड़िया हो। जब भेड़िया ना हो तो भेड़िया मत रुआ। लेकिन लड़का उनकी बातों पर मुस्कुराया जब वो चल रहे थे। एक बार फिर पहाड़ी से नीचे बड़बड़ाया। बाद में लड़के ने एक हकीकी भेड़िए को अपने रिवर के गिर्द घूमते हुए देखा। घबरा कर उसने अपने पैरों पर छलांग लगाई और जितनी ऊंची आवाज में वो चला सकता था, भेड़िया भेड़िया। लेकिन गाँव वालों ने सोचा कि वो उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है। वो मदद के लिए नहीं आए। गुरूब आफ्ताब के वक्त गांव वाले इस लड़के की तलाश में निकले जो अपनी भेड़ें लेकर वापस नहीं आया था। जब वो पहाड़ी पर गए तो उन्होंने इसे रोते हुए पाया। यहाँ एक भेड़िया था, रिवर चला गया। मैंने पुकारा, भेड़िया, लेकिन तुम नहीं आए। उसने चीख मारी। एक बूढ़ा आदमी लड़के को तसल्ली देने गया। जब इसने अपना बाजू उसके गिर्द रखा तो इसने कहा, कोई भी झूठे पर यकीन नहीं करता, यहाँ तक कि जब वो सच बोल रहा हो। कंप्यूटर्स और हलचल से भरे शहरों से भरी एक मुतहर्रिक दुनिया में नौजवान कारीन खुद को ऑनलाइन इनकम एम्पायर की मुस्तकबिल की सरजमीन में कदम रखते हुए पाते हैं। यहाँ मुहिम जोई के रहनुमा आपको एक सनसनीखेज सफर में ले जाने के मुंतजिर हैं कि आप अपने पहले $100 ऑनलाइन कैसे हासिल करें। हमारी कहानी एक जानदार आगाज से शुरू होती है जहाँ पैसे की अलामतें तैरती रहती है। मरकजी किरदार एलेक्स एक मुतजस्सिस और पुरज़्म नौजवान एक्सप्लोरर एक जादुई लैपटॉप के सामने खड़ा है जो बहुत से लोगों के लिए छपी हुई सलाहियत को खोलने की अपनी ताकत के लिए मशहूर पुरजोश है ना। रावी का कहना है कि स्क्रीन के ऊपर बैठे हुए एक अक्लमंद पुराने अल्लो की तरह जाहिर होते हुए इस पुरअसरार दुनिया को खोलने के लिए तैयार है। ये जादुई आला आपको ऑनलाइन कमाने में मदद करने की ताकत रखता है। अपने काबिल एतमाद नोटपैड को पकड़ो प्यारे दोस्त और आइए इस पर फितन तलाश में गौता लगाएं। किंगडम ऑफ स्किल्स में इनके सफर का पहला पड़ाव एलेक्स अपनी मुनफरद सलाहियतों और दिलचस्पियों को पहचानने की अहमियत को सीखता है। चाहे ये तहरीर का फन हो, डिजाइनिंग का रगबत हो
हो, ख्यालात और आरा को बांटने की खुशी और हुनर सलाहियत कमाने के लिए एक मुख्तलिफ दरवाजा खोलता है। आपको आला सतह के मंतरों की जरूरत नहीं है। अल्लाह का ऐलान करता है अपने परों को फड़फड़ाते हुए और जैसे सूफियाना प्लेटफॉर्म्स को जाहिर करता है, जो बुनियादी ग्राफिक डिजाइन से लेकर एक जबरदस्त वर्चुअल असिस्टेंट बनने तक खिदमात के मौके से भरा हुआ है। जैसे जैसे वो गहरा सफर करते हैं, वो खुद को हाल ऑफ मोनेटाइजेशन मेथड्स में पाते हैं। यहाँ एलेक्स मुतबादिल रास्ते दरियाफ्त करता है, जैसे मुल्हक मार्केटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट्स को तैयार करने का दिलकश दायरा। अलिफालूफ मंजूरी से सर हिलाता है। उन्हें अमेज़न एसोसिएट्स इस करोल के साथ पेश करता है, हर कामयाब फरोख्त पर कमीशन का वादा करता है। वादी ऑफ स्टार्टिंग ईजी की तरफ बढ़ते हुए एलेक्स हलचल मचाने वाले फ्रीलांसर्स, जानदार ब्लॉगर्स और हौसलामंद ऑनलाइन ट्यूटर्स को साथ साथ काम करते हुए देखता है। रावी मशवरा देता है, जादुई लोगो तैयार करने या दिलफरेब कहानियां सुनाने जैसे आसान कामों से शुरुआत करें, आजिज़ी से शुरू करें, और जैसे ही अब जबरदस्त जायजे हासिल करते हैं, अपनी बादशाही को बढ़ने और फलने फूलने दे। गाइड एलेक्स को जादुई दरख्त की तरफ ले जाता है, जो पके हुए सर्वे फलों से भरा हुआ है, जो थोड़ा सब्र के साथ और कमाई का मीठा जायका बर्दाश्त कर सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स के बाजार में कदम रखते हुए अल्लो गुमरोड एटसी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर परफितन ईबक सासन की डिजाइन टेम्पलेट्स तैयार करने के राज को सरगोशी करता है। गैर फाल आमदनी का इंतजार है, ये कहता है, जहाँ आपका काम कमाता है जब आप नई मुहिम जोई का ख्वाब देखते हैं। आखिर में लूमी गार्डन में एलेक्स ने आसमान तक पहुँचने वाले कमाई के चार्ट से तरक्की के नजारे देखे। एक बार जब आप अपना पहला $100 कमा लेते हैं, तरक्की का सफर शुरू हो जाता है। अलिफालो को हिदायत देता है, हिकमत के पंखों को बहा देता है। अपनी तख्लीकात की नुमाइश करें, मजीद जमीनों तक पहुँचने के लिए सोशल मीडिया को अपना काम करने दें और बाग को फलता फूलता रखने के लिए नए मंसूबे आजमाएं। कहानी मुहर्रिक की बाज़गश्त ले जाने वाली हुआ के साथ खत्म होती है। दूसरों की कहानियां जो पहले खड़े थे, जहां एलेक्स अब खड़ा है। सड़क लंबी लग सकती है, लेकिन इस्तिकामत वो जहाज है जो आपको गुजरेगा, अलूफ हौसला देता है। एलेक्स को याद दिलाना के छोटे अहदाफ और हर फतह का जश्न मनाना एक दिन उनके ही खजानों का बाइस बनेगा। इल्हाम से भरे दिलों के साथ एलेक्स इस अजीम मुहिम जोई का आगाज करने के लिए तैयार है। ऑनलाइन इनकम एम्पायर के अंदर तजुर्बात बांटने और कनेक्शन बनाने का अहद करना। एलेक्स में शामिल हूँ और अपने पहले $100 ऑनलाइन कमाने का जादू दरियाफ्त करें, क्योंकि ये सफर सिर्फ एक शानदार कहानी का आगाज। एक छोटे से गांव में एक नदी थी। लोग इसे पार करने के लिए दरिया पर बने हुए एक तंग पिल का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन एक बिक्री पिल पार कर रही थी। ने एक और बिक्री को मुखालिफ समत से पिल उबूर करते देखा। पिल इतना तंग था कि दोनों के गुजरने की जगह नहीं थी। दोनों बकरियां वापस नहीं जाना चाहती थीं। एक बिक्री ने दूसरी बिक्री से कहा, तुम वापस चले जाओ क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। दूसरी बिक्री ने इनकार कर दिया कि ये ज्यादा मजबूत है। दोनों कुछ देर बहस करते रहे। बाद में एक बिक्री ने अपने सींग नीचे रख कर लड़ते हुए दिखाया कि वो दूसरी से ज्यादा मजबूत है। वो आपस में लड़ पड़े और दोनों अपना तवाजुन खोकर नीचे नदी में गिर गए। नदी का तेज करंट उन्हें लेकर गहरे पानी में बह गया और वो दोनों डूब गए। थोड़ी देर बाद दूसरी दो बकरियां मुखालिफ सम से सीपुल पर आ गईं। दोनों में झगड़ा होने लगा कि एक बिक्री दूसरी को रास्ता दे दे। इस बार एक बिक्री ने कुछ देर सोचा और दूसरी बिक्री को रुकने को कहा। उसने कहा, अगर हम दोनों लड़ेंगे तो दरिया में गिरेंगे और डूब जाएंगे। इसके बजाय मेरे पास एक मंसूबा है। मैं लेट जाऊंगा और तुम मेरे ऊपर से चलो। तब अक्लमंद बिक्री पिल पर लेट गई और दूसरी बिक्री उसके ऊपर से चल पड़ी। नांचे वो एक दूसरे से गुजरे और अपने रास्ते पर चल पड़े। अखलाक गुस्सा गम की तरफ ले जाता है और मेहरबानी खुशी की तरफ ले जाती है। एक दिन सहरा के नखलिस्तान में एक ऊंट और उसका बच्चा खजूर के दरख्त के साए में आराम कर रहे थे। ऊंट का बच्चा दुनिया के बारे में मुतजस्सिस अपनी माँ की तरफ मुतवज्जे हुआ और पूछा, माँ हमारी पीठ पर ये बड़े कोबड़ क्यों हैं? माँ ने मुस्करा कर जवाब दिया, हमारे पास चर्बी को जखीरा करने के लिए कोहान है, इसलिए हम सहरा में तवील फासले तक बगैर खुराक पानी के सफर कर सकते हैं। इससे हमें इस सख्त माहौल में जिंदा रहने में मदद मिलती है। बच्चे ने एक लम्हे के लिए सोचा और पूछा, हमारे पास लंबी टांगे और बड़े गदले पाँव क्यों हैं? माँ ने वजाहत की, हमारी लंबी टांगे और चौड़े पांव हमें सहरा की नर्म रेत में डूबने से रोकते हैं, जिससे जमीन गर्म होने के बावजूद हमारे लिए चलना आसान हो जाता है। ऊंट के बच्चे ने फिर पूछा कि हमारी लंबी पलकों का क्या होगा? हमारी लंबी पलकें हमारी आंखों को रेत और तेज धूप से बचाती हैं। माँ ने कहा, वो हमें महफूज रखने के लिए ढाल की तरह काम करते हैं। ऊंट का बच्चा एक लम्हे के लिए खामोश रहा, फिर बोला, अगर हमारे पास सहरा की ये तमाम खुसूसियात हैं तो हम चिड़िया घर में क्यों रह रहे हैं? माँ ऊंट ने रुक कर आह भरी। बाज औकात यहाँ तक कि जब हमारे पास वो सब कुछ होता है जिसकी हमें तरक्की की मनाजिल तय करने की जरूरत होती है, जिंदगी हमें ऐसी जगह पर ले जाती है जिससे हमारा ताल्लुक नहीं, लेकिन ये हम पर मुनहसिर है कि हम इससे बेहतरीन फायदा उठाएं और एक जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम मिडास था, जिसने एक साहिर के लिए एक अच्छा काम किया, फितरत की रूह। शराब के देवता डायवनीसस ने फिर इसे एक ख्वाहिश दी।
अपनी ख्वाहिश के लिए दास ने पूछा कि वो जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगा। इसको रोकने के लिए डिवनिसस की कोशिशों के बावजूद मिडास ने इल्तिजा की कि एक शानदार ख्वाहिश थी, इसलिए इसे अता किया गया। अपनी नई हासिल करदा ताकतों के बारे में पुरजोश दास ने हर किस्म की चीजों को छूना शुरू कर दिया, हर चीज को खालिस सोने में तब्दील कर दिया। लेकिन जल्द ही मिडास को भूख लगने लगी। जब इसने खाने का एक टुकड़ा उठाया तो इसे मालूम हुआ कि वो इसे नहीं खा सकती। इसके हाथ में सोना हो गया था। भूखा, मिडास ने कराहते हुए कहा, मैं भूखा रहूंगा। शायद ये इतनी बेहतरीन ख्वाहिश नहीं थी। इसकी मायूसी को देखकर मिडास की प्यारी बेटी ने उसे तसल्ली देने के लिए उसके गिर्द बाजू फेंके और वो भी सोना बन गई। सुनहरी लम्स कोई नेमत नहीं है, मिडास ने पुकारा।